ہونے کے ناطے میاں شہباز شریف صاحب کے کچھ حقوق ہیں. آپ جس طرح پنجاب کو ریموٹ کنٹرول سے چلا رہے ہیں اسی طریقے سے آپ نے کل جیل میں جو احکامات بھیجے ہیں وہ سب تک پہنچ چکے ہیں. اور ہم آپ کو بتا دیں آپ نے زندگی میں ایک دن قید نہیں کاٹی. وکلا تحریک ہوئی, آپ پولیس کے ڈر سے دیوار پھلانگ کے بھاگ گئے. آپ کو جیلوں کی عادت نہیں ہے. آپ کی جمہوریت کے لیے اس ملک میں کوئی جدوجہد نہیں ہے. آپ نے کبھی کوئی سیاسی جدوجہد بھی نہیں کی. 2014 کے دھرنے جو آپ نے اپنے سیاسی کزن کے کندھے پر بندوق رکھ کے چلائی وہ بھی سب کو پتا ہے کہ وہ ڈھونگ کیسے رچایا گیا اور آپ کا اس میں کیا کردار تھا. آپ کو اگر جیل جانا پڑ گیا جو کہ آپ جائیں گے تو آپ 1 گھنٹے کی مار نہیں ہے عمران احمد نیازی, یہ میں آپ کو بتا دوں. جو لوازمات اور جن چیزوں کی آپ کو عادت ہے وہ جیل میں شاید آپ کو مہیا نہ ہو سکے. اور آپ جو دیوار پھلانگ کے بھاگنے کے عادی ہیں, جس دن جیل جانا پڑ گیا تو آپ کو نانی یاد آ جائے گی, اتنا میں آپ کو بتا دوں. اور ہم کسی قسم کی کوئی رعایت یا کسی قسم کی کوئی سہولت نہیں چاہتے, مگر ایک شخص جس نے خون پسینہ دے کے اس ملک و قوم کی خدمت کی ہے, 3 دفعہ وزیر اعلیٰ رہا ہے, قوم کے اربوں روپے بچائے ہیں, میاں نواز شریف کی قیادت میں لوڈ شیڈنگ کے اندھیرے ختم کیے ہیں, بجلی کے کارخانے لگائے ہیں, بجلی کے منصوبے لگائے ہیں, اگر اس کے ساتھ یہ سلوک جاری رکھا گیا تو ہم اپنے اگلے لاہے عمل کا اعلان بھی کریں گے اور آپ کو یہ ظلم اور یہ بربریت نہیں کرنے دیں گے. یہ کہاں کی انسانیت ہے کہ ایک شخص کو کرسی تک مہیا نہ کی جائے. نماز ادا کرنے کے لیے اگر اس کو کرسی ریکوائرڈ ہے تو وہ بھی مہیا نہ کی جائے. کہا جائے سونا ہے تو زمین پہ سو, کھانا بند کر دیا جائے. تو یہ بنیادی انسانی حقوق ہیں. ہم عدالت کے روبرو اپنی درخواست پیش کریں گے اور جو بنیادی ضروریات ہیں وہ ہر قیدی کا حق ہے, وہ جو بھی ہو. ہر قیدی کو بنیادی جو ضروریات ہیں وہ پہنچنا آئین پاکستان گارنٹی کرتا ہے. اور ہم یہاں نہیں رکیں گے, ہمیں جانا پڑا تو ہم ہائر کورٹ سے بھی رجوع کریں گے. مگر آپ کو میں دوبارہ بتا دوں, آپ کا بھی وقت آنے والا ہے. آپ نے 2 سال کے اندر جو تباہی کی ہے, ملک کو تباہی کے دہانے پہ کھڑا کر دیا ہے. معیشت آپ سے چل نہیں رہی. آٹا 20 کلو کا تھیلا 1500 روپے کا مل رہا ہے, چینی 100 روپے پہ ہے. آپ جس چیز کا نوٹس لیں اس کی قیمت اوپر چلی جاتی ہے. تو یہ عوام کا ہاتھ ہوگا اور آپ کا گریبان ہوگا. آپ نے 2 سال میں جو تباہی کی ہے, آپ کے پاس فیوچر روڈ میپ ویژن بھی نہیں ہے, اور آپ کو جیل بھیجیں گے اور آپ کے کرائے کے ترجمانوں کا نام ای سی ایل میں ہوگا. آپ کی جو غیر ملکی کابینہ ہے یہ تمام لوگ ای سی ایل میں ہوں گے. اور آپ جب جیل جائیں گے تو جیسا میں نے پہلے کہا آپ کو 1 گھنٹے کے اندر نانی یاد آ جائے گی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, یہ ایک جمہوری دور میں سیاسی قیدی پولیٹیکل پرزنرز کون ہوتے ہیں؟ وہ پولیٹیکل پرزنرز جن کو ایک انفیئر پروسیس کے ذریعے آپ ایک پولیٹیکلی موٹیویٹڈ یعنی اپنے سیاسی مفاد کے تحت کسی ایسے انتظام میں آپ ان کو جیل میں ڈالیں, یہ سیاسی قیدی ہوتے ہیں. اور سیاسی قیدیوں کا جمہوری دور میں ہونا اس جمہوری دور کے اوپر ایک سیاہ دھبا ہوتا ہے. شہباز صاحب اپوزیشن لیڈر ہیں نیشنل اسمبلی میں. شہباز صاحب کی گرفتاری ہم سمجھتے ہیں کہ پہلے نیب کو حکومت کی ہدایت پر اس گورنمنٹ نے صرف ایک سیاسی نظریہ مختلف رکھنے پہ, ایک سیاسی پارٹی کے لیڈر مختلف ہونے پہ, ایک اپوزیشن لیڈر ہونے پہ نیب کو ایز اے ٹول آف آپریشن یوز کیا, ان کو گرفتار کیا. اور وہ جو نیب کے لاء میں بھی اس بات کی کوئی واضح طور پہ
इस तरह की नहीं थी चीज़ कि जिसके तहत आप उनको गिरफ्तार करते, लेकिन हाई हैंडेडनेस की, पॉलिटिकली मोटिवेटेड डिसीजंस की इंतहा थी। तो सियासी कैदी कौन है जिसको उसकी पॉलिटिकल थॉट्स पर, जिसको उनकी पॉलिटिकल अलाइनमेंट पर, जिनको उनकी पॉलिटिकल एसोसिएशन पर, जिनको उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप पर गिरफ्तार किया जाता है, ये पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं। तो इमरान खान जो हुकूमत आज चला रहे हैं, उस हुकूमत में जो चीज़ सबसे बदनुमा उनके ऊपर जो दाग है वो सियासी कैदी रखने का है। और मुकदमात क्या है, हम पूछ पूछ के थक गए हैं कि क्या सिर्फ शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो मवाद दिया गया है उस पर रेफरेंसेस बनने हैं, और नैब ने सिर्फ एक आलाकार बन के शहजाद अकबर और इमरान खान की ख्वाहिश पे उसके ताबे वो रेफरेंसेस बनाने हैं, और कोई प्रोसीड ऑफ क्राइम नहीं बतानी। सारे मुल्क के लिए कवानीन एक तरफ, शहबाज शरीफ और उनकी फैमिली के लिए, शरीफ फैमिली के लिए, मुस्लिम लीग नून के लोगों के लिए लॉज एक तरफ। तो ये परसिक्यूशन की बदतरीन मिसाल है। यानी अगर ये मामलात जिस तरह से ये डेमोक्रेसी की आज बात की जाती है कि ये हुकूमत बिल्कुल कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है, ये फाशिस्ट गवर्नमेंट है, ये फाशिस्ट रवैये हैं। अपने सियासी मुखालिफिन को बर्दाश्त न करना, उनको जेलों में डालना, उनके साथ ये रवैया जहां पर उनके बुनियादी इंसानी हकूक को बिल्कुल मुअत्तल करके रख देना, एक बीमार तक उसकी दवाई ना पहुंचने देना, एक शख्स जो नमाज की अदायगी खड़े होकर रुकू सजदा नहीं कर सकता, उनको नमाज पढ़ने तक के लिए कुर्सी ना देना, इससे बड़ा जालिम और फस्ताई रवैया पाकिस्तान की तारीख में, मार्शल लॉ में तो शायद इस तरह की कोई मिसाल मिलती हो, लेकिन ये मार्शल लॉ से भी बदतरीन है। इमरान खान का जो आज का ये रवैया है, अगर आप यहाँ पर कोई यहाँ पर ह्यूमन राइट्स के वो टेस्ट जो दुनिया में अप्लाई होते हैं, अगर आप अप्लाई करें तो ये शहबाज साहब किस चीज के कैदी हैं? ही इज प्रिजनर ऑफ हिज कॉन्शियंस। किस लिए? कि वो एक खास सोच रखते हैं। वो क्या सोच रखते हैं? पाकिस्तान की तरक्की की। वो क्या सोच रखते हैं? मियां नवाज शरीफ की लीडरशिप की। वो क्या सोच रखते हैं? इस मुल्क के अंदर एक जमहूरी प्रोसेस की। और ये शख्स इमरान खान जो आज वजीर आजम की कुर्सी पे विराजमान है, बदकिस्मती से जमहूरियत की जीम से वाकिफ नहीं है, फस्तायत के ऊपर उतरा है। कैद में डाल के उनको वो तमाम सहूलतें जो ये देखें ना कि एक पर्सन स्पेसिफिक लॉ अमेंड कर रहे हैं। मैंने अभी मुझे किसी ने बताया कि ये उस्मान बुज़दार की गवर्नमेंट ने जो जेल मैनुअल होता है उसमें अगर कोई ग्रेजुएट किसी वजह से जेल में चला जाए, या कोई जो टैक्स पेयर है, ये भी मुझे अता साहब बता रहे थे कि जो कोई टैक्स पेयर है उसके लिए कुछ सर्टेन सहूलतें हैं, लेकिन क्योंकि शहबाज शरीफ कोई परवाह नहीं, हम कतन नहीं मांगते शहबाज साहब के लिए कि वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, ये गवर्नमेंट उनको इस बुनियाद पर कुछ करे। लेकिन जहां पर इक्वेलिटी ऑफ लॉ की बात होगी, जहां पर इस आइन की बालादस्ती की बात होगी, तो हम तुम्हें शीशा जरूर इमरान खान दिखाएंगे कि ये तुम्हारी गवर्नेंस है और ये तुम्हारा इंतकाम है कि तुम एक बीमार शख्स को, एक कैंसर पेशेंट को उनकी मेडिसिन से, उनकी उस ट्रीटमेंट से जो डॉक्टर्स ने एडवाइस की हुई है, उनसे भी उनको इनकार करवा रहे हो। ये कैसा दौर आ गया? एक बात और मैं आपसे कहता जाऊं, हम ये इनकी जो ज्यादतियां हैं ये सिर्फ आपको पब्लिक डोमेन में दे रहे हैं, बता रहे हैं। हमें इनसे किसी किस्म की कोई रहम की भीख नहीं मांगनी। हम कहते हैं कि इससे बढ़कर जुल्म करो, तुम्हारे सामने डट कर खड़े हैं, खड़े रहेंगे। जो पाकिस्तान का तुमने बुरा किया, जो इस मुल्क की मईशत को तुमने बर्बाद किया, जो 22 करोड़ अवामों की जिंदगी तुमने मफलूकुल हाल करके रख दी, जो जमहूरी कदरें, जो सफर यहाँ की मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज तय करके पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती की एक जंग लड़ती हुई जा रही थी, इन सब के रास्ते में ऑब्स्टेकल इमरान खान आप बने हैं। और मैं सिर्फ ये आपसे दो बातें करता हूं कि एक, ये परसिक्यूशन जो अता भी कह रहे थे अनकॉल्ड फॉर नहीं जाएगी। परसिक्यूशन का हमेशा जवाब देना पड़ता है। सियासी इंतकाम पर मबनी किए डाले गए जो मुकदमात होते हैं, ये हमेशा तारीख में उन लोगों के ऊपर वापसी अपने मुकदमात जरूर कायम करते हैं जब ये पता चलता है कि ये परसिक्यूशन करने वाली गवर्नमेंट है। और इसी तरह से ये जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स होते हैं, उनका टेस्ट क्या है दुनिया में आज आपने देखना है
कि मैं एक खास सियासी नजरिया रखता हूं, मुझे पकड़ लें। जो ट्रायल आपने किया है, हमें अपनी अदालतों पर यकीन है कि उस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस के जरिए आपने जेलों में भेजा है, वो जब भी जुडिशियल स्क्रूटनी से गुजरेगा, वो कोई एक जुडिशियल स्क्रूटनी का टेस्ट नहीं पास कर पाएगा, क्योंकि कोई एविडेंस नहीं है, कोई प्रोसीड ऑफ क्राइम नहीं। आपने उनके कारोबार के पिछले 10 साल के रिकॉर्ड उठा लिए। वो कोई इमरान खान की तरह लोगों की मांगे तांगे के गुजारा करने वाले आदमी थे? वो को लोगों की जेबों में हाथ डाल के रखने वाले आदमी थे? वो को फॉरेन फंडिंग्स के साथ अपने बनी गाला के महल तमीर करने वाले आदमी थे? वो को फॉरेन फंडिंग्स के साथ लोगों से चंदा मांग के, अगर इस मुल्क में किसी चीज की इंक्वायरी होनी चाहिए, पब्लिक मनी क्या होती है? एक तो पब्लिक मनी वो है टैक्स पेयर्स की, जिसकी गवर्नमेंट कस्टोडियन है। एक पब्लिक मनी वो है जो लोगों से आप चंदा इकट्ठा करते हैं। उस चंदे को इकट्ठा करके आप किसी पब्लिक पर्पस के लिए यूज करते हैं, और किसी एक जगह पर एक एविडेंस आ जाए कि वो पैसा जो आपने चंदे में इकट्ठा किया था, उसके ऊपर कोई सवाल उठे, तो उसके ऊपर कमीशंस बनते हैं, गवर्नमेंट उसके ऊपर कमीशंस बनाती है। ये वाहिद निजाम ऐसा है कि मांगे तांगे का शख्स एक कारोबारी फैमिली को, जिनकी नॉन एक इंडस्ट्रियल पोजीशन थी, उनके ऊपर सवाल उठाता है कि 10 साल की तुम्हारी मिलों की जो ट्रांजैक्शंस हैं, अल-अमान अल-हफीज, यार ये कैसा जुर्म है, ये कैसा गुनाह है कि इस मुल्क में उनकी सियासत करना तो जुर्म था ही था, उनका कारोबार करना भी जुर्म पड़ गया कि बगैर प्रोसीड ऑफ क्राइम बताए उनको सजाएं दे दें। शहबाज शरीफ की हद तक आपने कोर्ट में ये दरख्वास्त दी है या हमजा शहबाज के पास ऑलरेडी ये सहूलियात पहले से हैं? देखिए, जो बुनियादी सहूलत किसी भी कैदी को मिलती है, वो शहबाज शरीफ साहब को देने से इनकार किया गया है और स्पेशल इंस्ट्रक्शन पीएम हाउस से आई है। बुनियादी सहूलत क्या होती है? आपको एक मैट्रेस मिल जाए, एक कुर्सी मिल जाए, तो वो शहबाज साहब को उन्होंने बाकायदा पीएम हाउस की इंस्ट्रक्शंस पे ज़मीन पर सोने का कहा, और शहबाज साहब की तरफ से हमें कोई इंस्ट्रक्शन नहीं आई, बट पार्टी ने यह फैसला किया है कि हम कोर्ट से रुजू करेंगे और उनकी बुनियादी इंसानी हकूक़ को बहाल कराएंगे। ये कोई गुआंतानामो बे नहीं है, और शहबाज शरीफ साहब कोई टेररिस्ट नहीं है कि वो कोई दहशत गर्दी के किसी वाक़े में खुदा न खास्ता मुलव्विस है।